हेलो जी, लाइव चले गए हम जी जी लाइव फेसबुक पे। अच्छा, मैं फिर सीएफओ का चेक कर लेता हूँ। और बाकी कब आ रहे हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब, कब स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, स्टार्ट करूँ फिर मैं? अच्छा, मुझे क्या बता है? दीजिएगा कब स्टार्ट करना है। नहीं मैं आ गया, सो गया था, मीटिंग शुरू हो गई मेरी। हाँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, 6 बजे मीटिंग है, नमाज पढ़ लिया, आता हूँ फिर। अल्लाह हाँ। नहीं मैं आ गया, सो गया था, मीटिंग शुरू हो गई मेरी। हाँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, 6 बजे मीटिंग है, नमाज पढ़ लिया, मीटिंग शुरू हो गई मेरी। हाँ, मैं ऊपर बैठा हूँ। जरा मेरी मीटिंग है, जरा यहाँ से जो शुरू हो गई है। मैं जूम मीटिंग है ना, रोशन डिजिटल की, वो आ गए सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। यू आर ऑन म्यूट मैडम सीमा। हाउ आर यू? जी, कैसे अस्सलाम आप? वालेकुम। ठीक है। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? Brother, I think you Am I should start. audible? Ji, audible, you should start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी इरफान साहब कैसे हैं आप? जी Are अल्लाह you का back? वास्ता। वापस कैसे आ हैं गए आप? आप? जी वी केम यस्टरडे, कल आ अच्छा। गए थे, Good. तो थैंक यू सो मच। हेलो। जी शहजाद प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। Shehzad, I think everybody is here. We can now start. Assalamualaikum. Am I audible? You are Hello. audible, please. Sure, start करें. Hello. It is perfect. जी Perfect. perfect. Start करें शहजाद please. Rizwan, can you hear me? जी प्लीज। I can't hear you. There's some glitch. I don't know what happened suddenly. आई थिंक उसको म्यूट करके दोबारा स्टार्ट करें। Yeah, it's better now, I think. जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Today our topic is on Roshan Digital Account and Islamic Naya Pakistan certificates. This webinar is brought to you by Mizan Bank, CFO Club Pakistan, as well as the Institute of Bankers Pakistan. I welcome all of you to esteemed panelists as well as the audience. Here, a bit of introduction. Let me open for you. G, there we go. So today, our first panelist is Madam Seema Kamil, who is the first female deputy governor of the State Bank of Pakistan. And previously, she was the president of a bank, again, the first female president ever for Pakistani Bank. Thank you for joining us, Ms. Seema. Our second panelist is Mr. Irfan Siddiqui, who is the founding president and the CEO of Mizan Bank Limited.
He has served in the banking industry for so many years, as well as he was CEO of Mizan Investment Bank previously, as well as he has served on the boards of Pakistan Kuwait Investment Company. He's a board and trustee of AUFI, which is an accounting standard body in Bahrain. Our next panelist is Mr. Syed Irfan Ali. Irfan साहब हमारे webinars पे पहले आप इनको देख चुके हैं, especially on cyber risk. Irfan साहब recently moved हुए हैं as a managing director for Deposit Protection Corporation, which is a subsidiary of State Bank of Pakistan. Again, he has a very vast and huge experience, especially in the State Bank of Pakistan, serving in various capacities. Our next panelist is His Excellency Mr. Qamar Abbas, who is an acting ambassador for Pakistan to Vietnam and Laos. Again, Dr. Rizwan, one of the co-founder of CFO Club, who is also CEO of DRGA Global Associates, and he's mainly based in Vietnam, and he works mainly for the ASEAN region. You will also have a presentation on the topic by Mr. Mohammad Raza, who is currently heading customer support group at Mizan Bank Limited. This webinar is brought to you by Mizan Bank, IBP, and the CFO Club. Normally, CFO Club organizes 4 webinars each month, normally in collaboration with IBP. CFO Club was formed in 2018 with a membership base of around 2,500 C-suite executives, CFOs, CXOs, CEOs. So some logistics. We will have a welcome note by CEO of Mizan Bank. Then there will be an address by Deputy Governor, State Bank of Pakistan, Ms. Seema Kamil. Then we have a presentation by Mizan Bank on the topic. After that, we will have a panel discussion of around 30 to 40 minutes. Thank you very much. This was a brief introduction. So I would like to welcome Mr. Irfan Saab to enlighten us on the topic as well as give his welcome speech. Over to you, Irfan Saab. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm glad again to host this seminar for the second time. This is the third in series which we are doing for Mizan Bank. And I think as my start off, I'll thank Shehzad Saab for co-hosting this seminar. And also very grateful to Madam Seema Kamil, Deputy Governor, State Bank, and Irfan Ali Saab, and our ambassador from Far East. So, and I think he's joining in the capacity as a expatriate Pakistani. So probably share his experience and his thought process in terms of what difficulties our Pakistani colleagues face outside, when they're outside, and how to open the account. I myself was an expatriate once upon a time, long time ago though. And obviously opening an account in Pakistan was not easy. So I'm happy that with this initiative of State Bank of Pakistan, we are here today. And very brief introduction about Mizan Bank. Mizan, as probably most of you are aware, was the first bank to be granted a license for a full-fledged Islamic commercial bank in 2002. At that time, we were the smallest. I think there were a total of 32 banks in the country, and Mizan was the smallest bank. By grace of God, alhamdulillah, because there has been a lot of demand factor there, Mizan now ranks as the 6th bank in the country in terms of deposit and probably the branch size as well. In terms of our efforts in Russian Digital, again, thank you to Seema Saiba and Irfan Saib as well for guiding us all the way through. We probably are the #1 bank in terms of the size of deposit in the Russian Digital account, and also #1 in the amount of investment which came through Mizan Bank in the Islamic certificates which we are issuing, both in dollars and rupees. The total amount of money which we have received in these accounts has been over roughly 3 billion rupees, about $1.7 million.
I feel that's a very good start, because initially people are just testing the waters to see how easy is it to open the account, to transfer the money, to take the money back in to their own countries. And mashallah, up to now, in this short period of, I don't know how long this has been operating, roughly a month, we have 7,000 people who have opened account in Mizan Bank from 75 countries across the world. So alhamdulillah, we feel very comfortable and confident that this process will go a long way to address the needs of our expatriate Pakistani. The idea of this account is not just really to see how expatriates Pakistani can help Pakistan. That could be one of the secondary reasons. But the main thing is that, we should give them an opportunity to invest in Pakistan, especially those workers who are not blue-collar workers. I would say most of them who are on this Zoom call right now. When people have choices sitting abroad, whether in the Middle East or the US or Far East, to invest anywhere in the world, then Pakistan is just one of the domains where they can invest. So we want to basically tell them that, in their horizon or the menu of countries where they can invest, Pakistan is one of the better countries. Rate of returns are very good. I think our stock market was the 4th best performing market in the world in the post-COVID environment. And in the dollar certificates, the rate of return which is being offered only to expatriate Pakistanis and to resident Pakistanis who have declared wealth outside is, any time better than whatever you can get elsewhere. A rate of 5.5% compared to international markets of less than 0.5%. So in my view, once the remittability is assured, quite frankly, it's a no-brainer to invest in these certificates and to invest in Pakistan. So you get the dual advantage of, feeling that patriotism of Pakistan as well, and also benefiting from this thing. So I think rather than a long introduction, I would probably just urge all our Pakistani expatriate population to come forward and invest in Pakistan. And inshallah, in the Q&A session, we can, take it on more in details. And I would request Seema Sahiba to please brief our audience in terms of what State Bank is doing on this. Thank you, everyone. Ji, Seema. Alaikum, and thank you very much, Azad Saab, for your interview, for your introduction. Irfan Saab, thank you so much to Mizan Bank for organizing this. I think I must say that Mizan Bank has been a great support for us and to the expat community of Pakistanis and to people in Pakistan on this front and many others. So thank you so much. I'm sure that Irfan Saab, who's joined us from State Bank, will agree that Mizan Bank has been a star performer in this initiative, which is from the Government of Pakistan and the State Bank of Pakistan. I'm also very grateful to the CEO Club and to IBP for arranging this. The State Bank is participating in a number of webinars to enable us to communicate with Pakistanis abroad and explain about the RDA account and the Naya Pakistan certificate and the Islamic Naya Pakistan certificate as well. And also to address any questions or queries that they may have, and also to have a discussion around any concerns that they may have. Pakistan and the State Bank of Pakistan is very interested in financial inclusion, and digitalizing the process is critical to that. We've taken a number of steps to do that. And one of the things that was a major issue for Pakistanis overseas was how to open it. And there was a huge process that you had to follow. You had to go to the consulate, you had to get papers verified. Sometimes you were still asked questions. So what we have done is to make this process end-to-end digital. I will admit that in the beginning we had some hiccups, but now there are 8 banks, including Mizan Bank, who can offer this. And a lot of the procedural issues have been resolved. And I'm happy to report that a total of 39,000 accounts have been opened in about the 2 months that this initiative has been running. And total funds received now stand at $73 million.
equivalent. This is obviously available in rupees and US dollars, but the total amount is 73 million. It is simply that you visit a bank's website and go to their what's called the RDA or the Roshan Digital account. And then you can also have many investment options, whether you wish to invest in the Naya Pakistan certificate, the Islamic Naya Pakistan certificate, the Karachi Stock Exchange, and real estate through this RDA account, which, and of course, as Irfan Saab has mentioned, the returns are very attractive by in any option, wherever you may look in the world, based on dollars and on rupees, the return is very attractive. The second part is obviously Pakistanis overseas have requirements for transactions within the country. They wish to make payments, they wish to give funds to their dear ones, or they wish to invest in any other form, then the RDA account is available for them to do that as well. So we believe that it's a very convenient and attractive option for our expatriates, who obviously have been a major support to Pakistan over the years and remain one. In fact, we'd be happy to know that remittances, despite COVID, in fact, maybe COVID has assisted because informal channels have become less attractive, our remittances have actually increased to 23 billion in financial year 2020. And the last 2-3 months have been remarkably good in this area. I think those of you who are on this webinar are obviously astute and would like to understand a little bit about Pakistan's economy, because something that would obviously concern you as patriotic Pakistanis, but also as an astute investor, you always like to look at the entity that you're investing in. So the first thing to understand is that the Naya Pakistan certificate is a sovereign guaranteed instrument. You can invest and take out the funds at your will. And therefore, that is why, for your ease, we have made different tenors starting from 3 months and going up to 5 years, with returns commensurate with the tenor. Pakistan obviously has gone through a post-COVID and a COVID period. Prior to COVID, we were on a different. After COVID, the state bank and the government understood that one needs to ease the environment and inject liquidity. So the interest rates in that time were reduced by about 725 basis points, which is probably the highest in the world, highest cut in the world, other than Argentina. We also supported businesses during this time, because very important during lockdown, initial lockdown, that businesses were supported. So we had a number of schemes to assist banks in helping their businesses. All banks were encouraged at their own, obviously their own credit decision, to defer payments of principal by a year, which a large amount was done, something in the vicinity of about 600 billion rupees. We also, at the discretion of the banks, allowed them to restructure where there were difficulties even in servicing of the debt as far as markup was concerned. We also, importantly, assisted companies in retaining their workforce, because obviously when you're going through a difficult period, it is very hard to support the payroll. And so we gave payroll loans, which were called the Rozgar scheme. We also assisted in hospital financing so that COVID wards and so on could be set up. The total volume of this assistance was 1.7 trillion rupees, which was over 4% of GDP. So combined with the government's public health efforts and combined with our efforts to inject liquidity and to ease business during this difficult time, I think you would agree that both measures worked very well. And as a result, Pakistan on a public health has fared much better on COVID infections than you would have expected. Far better than the world average, a lot better than
Western countries, and then a lot better than the region as well. And other than that, we've also managed, and we are seeing initial but very clear signs of an upturn in the economy. Now, cement sales, automobile sales, steel, all of them are showing remarkable growth, as well as we are working on other housing and construction, along with mortgages, so that there's further impetus to the economy. So I think if you're talking about the economy, or if you wish to assess that, in the State Bank and the government's opinion, things are looking up. Yes, of course, there is a COVID exists, and of late the numbers have been going up, but so far compared to the rest of the world, we are doing a lot better. So I think if there are any concerns about Pakistan's economic situation, I think those should be alleviated. You've also noticed that our currency now, for the first time, moves in a market determined manner, and has, we devalued up to depreciated by about 8.5%, but now it is moving the other way, which also shows the resilience in the economy. So I think that also is a comfort to those who invest, to understand that other than any disorderly movement in the market, the State Bank is not intervening in the foreign exchange market. So there've been and that really has helped us to move from a current account deficit, which is our historical position, to a current account surplus, which is unusual, particularly in these strained times. So with that background of the economy, I'd just like to encourage all of you to take advantage of this opportunity. Please try it. Yes, if you have any issues, we are also working continually with the banks to reduce complaints or any hiccups. With that, I'd like to conclude and encourage all of you and look forward to all of your questions. Thank you very much. Thank you, Ms. Seema Kamil. Thank you, Irfan Saab. Amazing input on the topic. अच्छा, मैं खुद भी थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड पे भी जाता हूँ. मैं कुछ 4.5 साल सिंगापुर रहकर आया. सो आई नो द डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती हैं, किस तरह से वो हमें अपने रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर करने हैं. तो ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है. इट वुड बी अ गेम चेंजर, क्योंकि जो ओवरसीज में मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, मुझे पैसे भेजने हैं, फिर ट्रांजेक्शन्स करनी है. अगर मैं ओवरसीज में बैठ के वहीं से अपना अकाउंट खोल के, जिसमें मुझे कोई ब्रांच में नहीं जाना, क्योंकि उसके बड़े एक हैसल होता है. अच्छा, ओवरसीज से हम पाकिस्तान आते थे तो भी ब्रांच के मसले होते थे, डॉर्मेंट हो गया, फला चीज हो गई, ब्रांच विजिट करो. तो अगर हमारा से 1 वीक का विजिट है तो एक दिन जो है ना वो बैंक के वो चक्कर लगाते हुए जाया हो जाता था. सो आई हैव सफर्ड अ लॉट एंड आई नो कि क्या पेन होगा जो डेकेड्स से रह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं. सो इससे बहुत सारे पेन जो हैं वो उसके मसाइल का हल हो जाएगा. आई एम सॉरी, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वुड बी कमिंग फ्रॉम many backgrounds, so I would prefer to talk a bit in English and more in Urdu. तो ये हमारा एक प्लान था कि कुछ हम उर्दू में भी बात करें. अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रिसीव भी हुए हैं, कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चंस मेरे भी हैं. तो सबसे पहले मैं इनपुट चाहूंगा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एनआरपीस के, रिजवान साहब और स्पेशली कमर साहब, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्बेसडर हैं वियतनाम में और लाओस में. एक स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. Here you go. जी, सबसे पहला ये है, जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था, ये गेम चेंजर इनिशिएटिव है. नाउ आपका क्या ख्याल है कि इस चेंज से क्या इम्पैक्ट आएगा, या आपको अभी एक जो बज़ सुनाई दे रहा है मार्केट में, एनआरपी जिसके मुतालिक क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगा कमर अब्बास साहब, आप अगर थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करें, आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वेबिनार अरेंज किया. मिस सीमा कामिल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं. और इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बहुत उम्दा अंदाज में इसके फ़वाइद के बारे में बताया.
आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक गेम चेंजर है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों के आपने पहले भी जिक्र किया कि मसाइल हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका, जो कि इस स्टेट बैंक के इस इनिशिएटिव की वजह से हल हो जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान में स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स के लिए मेरे ख्याल में ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर होगा और आने वाले दिनों में इसके फ़ायदे हमें तेज़ी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कुछ पाकिस्तानियों को इश्यूज आते हैं कि उनको अकाउंट खोलते हुए थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शायद उनकी उतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं है। अदरवाइज़ जैसे इरफान साहब ने बताया कि ऑलरेडी वो 7,000 अकाउंट्स खोल चुके हैं और बाकी बैंकों में भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं। तो ये स्टेट बैंक का एक बहुत अच्छा और इनकलाबी इक़दाम है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन भी है मीज़ान बैंक की तरफ से, एक ओवरऑल इनपुट आ गया। नाउ रज़ा साहब, अगर आप ब्रीफ हमें दें रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, कुछ ऑपरेशनल चीज़ें भी होंगी कि जो मैं भी समझना चाहूँगा और बहुत सारे हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो जानना चाहेंगे कैसे अकाउंट खुलेगा, कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, कैसे ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगर आप एक प्रेजेंटेशन शेयर कर दें एंड थोड़ा सा हमें इसके बारे में ब्रीफ कर दें। ओवर टू यू रज़ा साहब। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Honorable Ms. Seema Kamil, Deputy Governor, State Bank of Pakistan, Mr. Irfan Siddiqui, Founding President and CEO, Mizan Bank Limited, Syed Irfan Ali Saab, Managing Director, Deposit Protection Corporation, Mr. Qamar Abbas Fuqa Saab, Acting Ambassador of Pakistan to Vietnam and Laos, and Dr. Rizwan Khan, CEO, PGRA Global Associates, all the participants who have joined this webinar from across the world, Assalamu alaikum. थैंक यू शहजाद। और आपने आई थिंक उर्दू से थोड़ा स्टार्ट करके एक ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि हमने हमारा ये तीसरा कंटिन्यूस वेबिनार है और उसमें काफ़ी सारे हमारे पास व्यूज़ आते हैं और सेशंस और रिक्वेस्ट आती हैं कि ज़्यादातर उर्दू में किया जाए, और उर्दू कौमी ज़बान होने के नाते हम भी उसको कोशिश करते हैं फ़रोग़ देने की। ओके, इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे जाऊँ, कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहली बात तो ये कि मिज़ान Roshan Digital Account is a Sharia compliant bank account which has been specially designed to cater the needs of the non-resident Pakistanis. आप लोगों को सिर्फ ये बताते हुए कि टोटल जो ये मिज़ान जो स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है, इसमें 8 बैंक्स शॉर्टलिस्ट हुए, उन्होंने they are marketing and selling this Roshan Digital Account. Mizan Bank is the only bank which is fully Sharia compliant bank. तो जिसपे हम उम्म तौर पे ये कहते हैं कि this is the Mizan Roshan Digital Account is a new era of lifestyle banking along with the comfort of Sharia compliance. कुछ साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने एक कैंपेन शुरू की थी इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, और उसकी जो टैग लाइन थी वो थी दिल का इत्मीनान। तो we always say कि you have this comfort of Islamic banking, आपको एक दिल का इत्मीनान भी होता है, तो with Mizan you have that दिल का इत्मीनान। So as we have been discussing, this is a digital account, so कोई जरूरत नहीं है बैंक में आने की, आप अपने सिस्टम पर बैठकर आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए अकाउंट भी है और ये जॉइंट अकाउंट भी है, आप चाहें तो किसी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस वक्त 4 करेंसीज में ये अकाउंट अवेलेबल है, PKR के बाद US डॉलर्स, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इन 4 करेंसीज में आप अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह ताला अगली स्लाइड में मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताऊंगा कि जो आपने सबमिट करने। अकाउंट एक्टिवेशन, अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अगर फॉर्म सही भरा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला विद इन 48 आवर्स आपका ये अकाउंट खुल जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा। इसमें और जो दीगर अकाउंट जो कि NRPs खोलते हैं उसमें फ़र्क ये है कि इसको सिर्फ आप फॉरेन रेमिटेंस के साथ फीड कर सकते हैं। दीगर जो क्रेडिट्स हैं, कैश या ट्रांसफर वो अलाउ नहीं है। इसमें या तो फॉरेन रेमिटेंस आ सकता है या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है उनका जो प्रॉफिट है वो इस अकाउंट में गिर सकता है।
इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर की सहूलत आपको मुहैया होगी। डेबिट कार्ड PKR में आपको अवेलेबल होगा और आपके लिए फ्री चेकबुक भी होगी। तो अगेन आई रिपीट, इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग फॉर द NRPs। अब जब अकाउंट आपका खुल गया तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें वो तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज हैं जो पाकिस्तान में होती है, वो तमाम आप पाकिस्तान की बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप नया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको इंशाअल्लाह हम अगली कुछ स्लाइड्स में कवर करेंगे। आप शरिया कंप्लायंट शेयर्स और स्कूप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं TDC अकाउंट खोलकर। आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आप फ्री चेकबुक ऑन अ क्लिक ये और फी पेमेंट आप कर सकते हैं। आप जब ये अकाउंट खोल लेंगे तो आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी अवेलेबल होगा जो कि आपके जो मसाइल हैं या आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करेगा। और जो सबसे जो अहम बात है इसका, जो इस प्रोडक्ट की जो की है वो ये कि रिपैट्रिएशन जो है वो इसमें अलाउ है। आप अपने फंड्स को और उसका जो प्रॉफिट जो कि इन्वेस्टमेंट की सूरत में आया है वो आप दोबारा जहां से आपने जिस मुल्क से भेजा है आप अपने मुल्क में वापस ले जा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग which is very important and we always say that this is the key definition or the feature of this product. अच्छा, जब आपको हम बता रहे हैं कि इस अकाउंट को खोलना आसान है तो सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देते हैं कि आप किस तरह से अकाउंट को खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट है, लिहाजा आपने वेबसाइट पर जाना है। मिजान बैंक की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ओपन न्यू अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप उस ओपन न्यू अकाउंट को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने और दीगर अकाउंट्स के साथ मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट आ जाएगा। आपने ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट को क्लिक करना है। आपके पास अब दो ऑप्शंस आएंगे, इधर यू कैन ओपन इन पाक रुपी या फिर फॉरेन करेंसी। आप अपनी पसंद की जो करेंसी है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, जिसपे सबसे पहले ये आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है या फिर जॉइंट अकाउंट खोलना है। आप इंडिविजुअल या जॉइंट में से किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने उस अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपने करंट अकाउंट होगा या सेविंग, दोनों कैटेगरीज में मौजूद है। करंट या सेविंग जब आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर फिल करेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे जो इंशाअल्लाह अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ फिर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा ताकि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जा सके। वंस वो आपने कर लिया, आप टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी उन्हें आप एग्री करेंगे, उनको पढ़ के एग्री करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला और ये जो डॉक्यूमेंट्स जो कि अगली स्लाइड पर मैं आपको बता रहा हूँ इनमें, और अगेन वेरी इजी टू अपलोड। आपने कोई मैनुअल काम नहीं करना, आपने कोई फिजिकल चीज कोई नहीं देनी है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने स्कैन करके और अपलोड करना है। इसमें स्कैन कॉपी ऑफ योर CNIC, नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई जो भी अवेलेबल हो वो आप अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस वो आपने स्कैन करके अपलोड करना है। लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन मौजूद है, लाइव फोटोग्राफ आप ऐड करेंगे। साइन कॉपी ऑफ FATCA एंड CRS, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से इसको आपने साइन करके और ये आपने स्कैन करके और अपलोड करेंगे। सिग्नेचर कार्ड अगेन आपको साइन करके वो अपलोड करने हैं। फिर आपको NRP यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होने का प्रूफ देना होगा और उसके लिए या तो आप POC की कॉपी या फिर वीजा एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगी हुई अगर आपके पास पासपोर्ट में है तो वो आप उसकी कॉपी करके और वो आप अपलोड करेंगे। और लास्टली आपने अपना प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम आपने सबमिट करना है और उसके लिए यू कैन हैव अ स्कैन कॉपी ऑफ योर जॉब सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप। ये तमाम चीजें जब आप अपलोड कर देंगे और आपका फॉर्म भी बिल्कुल सही भरा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपका ये अकाउंट खुल भी जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा। अब जब आपने अकाउंट खोल लिया तो अब आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैंने ये बड़ा ब्रीफली, क्योंकि अगेन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हम आपके सवालात के लिए मुख्तस करें, तो बहुत ही मुख्तसरन हमने इस अकाउंट ओपनिंग को हमने कवर किया है। लेकिन आप अगर इसकी डिटेल जानना चाहें तो वेबसाइट पर मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट की जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो मौजूद है। आप उस वीडियो को देखकर मजीद भी और मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब आप जैसे कि हमने इब्तिदान बताया कि आप इस अकाउंट को खोलने के बाद
और ये अकाउंट खोलना प्री रिक्विजिट है तमाम आगे की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो कि शरिया कंप्लाइंट और बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है NRPs के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है। अगेन आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है इस्लामिक, ये मीज़ान बैंक आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर इशू करेगा, और इसकी पूरा शरिया कंप्लाइंट स्ट्रक्चर है, उसकी मैं इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अंडर द सुपरविजन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और यही वजह है कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कन्वेंशनल है वो पहले लॉन्च हो गया, लेकिन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को क्योंकि इसकी जो मोडालिटीज थी वो हमने तय करनी थी, इसमें थोड़ा टाइम लगा। इसका पूरा एक मुदारबा और इजारा बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें शरिया कंप्लाइंट प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स के साथ शेयर होते हैं। मुदारबा बेस्ड शरिया कंप्लाइंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इट्स ऑफर्ड इन 2 करेंसीज। जो आपका RDA है रोशन डिजिटल अकाउंट, वो 4 करेंसीज में है, लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपको 2 करेंसीज यानी पाक रुपी और US डॉलर्स में अवेलेबल होगा। इट्स अप्रूव्ड बाय द शरिया कमेटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे अभी मैडम सीमा कामिल साहबा ने भी कहा और इरफान साहब ने भी कहा, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फंड्स रिपेट्रिएशन, ये अगेन दिस इज अ की फीचर कि आप फंड्स वापस ले जा सकते हैं। जो टेन्योर है वो 5 टेन्योर में अवेलेबल है, 3 months, 6 months, 1 year, 3 years and 5 years। टैक्सेशन इसकी बहुत आसान है, सिर्फ 1 फिक्स्ड विद ओनली टैक्स है ऑन प्रॉफिट, लिहाजा कोई एडिशनल टैक्स इसके ऊपर नहीं है। और जो इसमें एक और सहूलत है कि अगर आपने इसे किसी टर्म के लिए अगर फिक्स किया है, इसे अगर 3 साल के लिए, और आप 1 साल बाद इसे अगर प्री मैच्योर इन कैश करवाना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। इसके लिए भी आपको वेबसाइट पर जो रोशन डिजिटल अकाउंट जहाँ पर पेज है वहीं पर आपको ये लिंक नजर आएगा। आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो आपसे अगेन आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और उस अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के बाद इस पर भी आपको एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। आप 1 टाइम पासवर्ड जब वेरीफाई कर देंगे फिर आपको अमाउंट डालना होगा, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है, टर्म यानी कि कितने महीने के लिए या कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपने डालना होगा। जो इसका जो मुदारबा एग्रीमेंट है वो आप पढ़ के एग्री करेंगे और आप सबमिट कर देंगे और आपका डिजिटल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। इसका जो प्रॉफिट रेट जिस पर बात हुई, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो US डॉलर्स के लिए 5.5% से तकरीबन 7% और पाक रुपी में 9.5 से 11%, विच इज really very attractive rate of expected return for any investments। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आप CDC के थ्रू आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स और सुकूक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी अगेन जिस तरह आप नया पाकिस्तान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया था या आप लिंक पर गए थे, इसी तरह से आप मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के ही पेज पर आपको ये इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक एक्सचेंज भी में आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई नाउ करेंगे तो आपको फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में आपने जो चीजें फिल करनी है वो आपने अपना कंसेंट देना है बैंक को, ताकि आप CDC को हम वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड कर सकें। आपने ब्रोकर्स को सिलेक्ट करना है। इस वक्त 3 ब्रोकर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, AKD, आरिफ हबीब एंड फाउंडेशन सिक्योरिटीज। इंशाल्लाह मजीद ब्रोकर्स हम ऐड करेंगे। जब आप उन ब्रोकर्स को सिलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो नाउ योर अकाउंट इन द CDC विल बी ओपन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और आप फिर शेयर्स भी बाय सेल कर सकते हैं, आप सुकूक्स भी बाय सेल कर सकते हैं और आप IPO में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी रोशन डिजिटल अकाउंट की मदद से आप DHA इस्लामाबाद, DHA सिटी कराची और DHA लाहौर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स के लिए लाजिम यह है कि आपका मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मीज़ान बैंक की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो दीगर सेविंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर सा खाका था आपके लिए कि आप किस तरह से इस अकाउंट को खुलवाएंगे और क्या क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कुछ मजीद मालूमात हासिल करना चाहें तो मीज़ान बैंक की 24/7 कॉल सेंटर अवेलेबल है, नंबर्स आपके सामने हैं। इसके अलावा हमने 2 व्हाट्सएप नंबर्स भी अवेलेबल किए अपने NRPs के लिए कि वो व्हाट्सएप के थ्रू भी
हमारी टीम के साथ राब्ता रखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर भी अवेलेबल है जिसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला we encourage all the NRPs to come forward to open their accounts. इसमें जो इब्तिदा में मैंने बात की, कन्वीनियंस भी है, आपका एक कंफर्ट भी है, आपका कि सिक्योरिटी भी है। जैसे डीजी साहबा ने कहा कि जो सोवरेन गारंटी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक तरह से गारंटी आपके पास, और लास्टली आपके पास जो कंफर्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग भी है। तो प्लीज डू विजिट वेबसाइट्स or open the accounts and come up with this investment. Thank you very much. And if you have any questions, we have this question answer box available. आप अपने सवालात उसमें डालें और हमारी टीम जो है वो मौजूद है, वो उसी वक्त आपको इंशाल्लाह ताला उन सवालात के जवाब देगी। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। रजा, just to add one small point, आपने ये बताया था कि टैक्स इस पे 10% लगेगा, that will be the final tax. So as far as taxation is concerned, this will be the tax which is deducted at source in Pakistan. मुख्तलिफ कंट्रीज के jurisdiction अपनी टैक्स के लिए अलग हैं, तो वो मालूमात आपको प्लीज अपने अपने देखनी होगी कि जिस तरह आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी होम कंट्री जहाँ पर आप रेसिडेंट हैं वहाँ के टैक्स लॉज को आपको ऑब्वियसली देखना होगा. This will be tax deducted at source will be 10%. The balance obviously you'll have to look after that side yourself. Thank you. Thank you Raza sahab, thank you Irfan sahab, amazing presentation. अगर इसको ऑफलाइन कर दें then we go for the question answer. जी इस वक्त 218 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मुझे सामने जो Q&A नजर आ रहा है, तो बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे कुछ मॉडरेटर्स हैं वो लाइव आंसर दे रहे हैं, बट वी स्टिल हैव 42 अनआंसर्ड क्वेश्चंस, उसमें से कुछ यहाँ पे एड्रेस हो जाएंगे. मेरा एक जनरल एक ओवरऑल क्वेश्चन है जो मैं डॉक्टर रिजवान से भी पूछना चाहूंगा और सैयद इरफान अली साहब से, कि देखिए ये पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है. अब ये मुझे पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर फर्दर इनिशिएटिव्स, क्योंकि एक आपने चीज बिल्ड कर ली, पैसा आना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप उससे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज ला सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्रिएटिव इंक्यूबेटर्स काम करके मजीद प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, ताकि ये फिर पैसा जो यहाँ पे आ रहा है ये चैनलाइज हो सके, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स में भी इन फ्यूचर, और PSX में है, डेरिवेटिव्स हैं, या बहुत सारे और जो मे बी प्रॉपर्टी की बाइंग है. सो मेरा तो ये व्यू है कि इट कुड बी अ बिग गेम चेंजर फॉर द फ्यूचर. डॉक्टर रिजवान साहब आपके क्या व्यूज हैं? जी शहजाद, बिल्कुल हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड पाकिस्तान को आमतौर पे अगर लोग देखते हैं तो उनको ये होता है कि जी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है. सो जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं. आई बिलीव दैट पाकिस्तानी यूथ इज़ रियली स्किलफुल, बहुत ही टैलेंटेड हैं. अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ वियतनाम से, वियतनाम में इन अप्रैल देयर वाज अ लॉकडाउन, और उस एक महीने के दौरान मैं बाहर नहीं गया, हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की, हमने पेमेंट भी ऑनलाइन की, सारी चीज़ें ऑनलाइन की. तो अगर यही RDA रोशन डिजिटल अकाउंट जो है इसको ऑनलाइन फिनटेक से कनेक्ट करके, कनेक्टिविटी करके, स्कूल फी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स एंड अदर थिंग्स अगर वहाँ पे हम काम कर सकें तो डेफिनेटली बहुत एवेन्यूज हैं. अच्छा, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो उनकी डेफिनेटली फैमिलीज होती हैं, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ अपनी फैमिली तक नहीं बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली तक होती हैं, कि जी ताया को भी देखना है, चाची को भी देखना है, सारे सबको देखना है. तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनको हम बड़ा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक चैनल बन सकता है अगर इसकी कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी इसके अंदर शामिल हो जाए. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कि जो अवेयरनेस लेवल है वो काफ़ी कम है लोगों के अंदर, तो वो उसको एक थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे जहन में यही है कि जी अगर कागज़ है तो वो सही है, अगर कागज़ नहीं है तो ये सही नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की, डेफिनेटली वो इश्यूज़ हैं, वो पूरी दुनिया में इश्यूज़ हैं, वो चाहे सिटी बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, हर एक के साथ साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं और उसको उसी के साथ हमें काम करना पड़ता है. तो ये एक चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा. तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उसके चैनलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो ऑनलाइन बैंकिंग पे क्यों जाएं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को क्यों ज़्यादा यूज़ करें.
तो देन आई एम श्योर कि लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वियतनाम में भी जो पाकिस्तानी है, थाईलैंड में, वो जब ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं लोकल बैंक्स की, तो पाकिस्तानी बैंक्स की भी डेफिनेटली यूज करेंगे। शहजाद आपका माइक म्यूट है। शहजाद आपका माइक म्यूट है। सॉरी, थैंक यू रिजवान। सैयद इरफान अली साहब, आप इस पे अगर अपना कोई एक इनपुट देना चाहें, और मोस्टली डेफिनेटली यू वर वर्किंग विद साइबर सिक्योरिटी प्रीवियसली। जी इरफान साहब। Thank you so much, Shahzad. I think अच्छा एक तो आई थिंक एक दो क्लैरिटी की जरूरत है, एक दो कॉन्सेप्ट्स में। वन, जब इस प्रोडक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे इंटरनली, जब हमारा थिंक टैंक काम कर रहा था, तो जो कॉन्सेप्ट था और द वे वी एनविजन दिस प्रोडक्ट वाज दैट इट कुड बी अ लाइफस्टाइल। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डॉक्टर रिजवान ने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली इट, दिस इज अ लाइफस्टाइल। So when you open a Russian digital account, so you're not only opening an account, but you're opening a lifestyle. तो आप आपने बिल पे करना है तो पे करें, प्लीज गो अहेड डू इट। आपने सिनेमा का टिकट खरीदना है तो खरीद लें, आपने गाड़ी का टैक्स पे करना है तो कर दें। सो दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जाहिर है क्योंकि उसमें हुकूमत पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और INPC था, तो भी हमने इसको कई तरह डिजाइन किया। हमने कहा कि लोग अकाउंट खोलें और अपने पेरेंट्स का बिजली का बिल पे करें, पानी का बिल पे कर दें, गैस का बिल पे, अपने बच्चों की फीसें पे करें। सो दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टैटिस्टिक्स आपके साथ इरफान सिद्दीकी साहब ने शेयर किए, उसमें कोई शक नहीं कि देयर आर, निज़ाम के अलावा भी देयर आर 7 अदर बैंक्स एंड वी आर गोइंग ग्रेट इन फैक्ट। और पैसे आ रहे हैं, लोग अकाउंट्स खोल रहे हैं और डे बाय डे वी आर गेटिंग बिजी। और मोर देन दैट, there other than 8 banks, there are others standing in line जो हमारे पास हमें रोज अब अप्रोच कर रहे हैं, they're knocking at the regulators door कि भाई हमें भी आने दो। तो जैसे डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा, very aptly said, this is the objective, it is being done and it will be further enhanced as that is. So we are extremely excited about this product. Money is pouring in, accounts are opening, overseas Pakistanis, they are now feeling better, they are feeling better linked to Pakistan. Thank you, Shahzad. जी, स्क्रीन शेयर किए, एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, या सो स्टेट बैंक की प्रेडिक्शन क्या है? अभी आपने जो नंबर शेयर किए थे $73 मिलियन, सो आई वुड लाइक टू नो, एंड डेफिनेटली सबका ये होगा, एक दो और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। आप क्या देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, 1 ईयर में, और लॉन्ग टर्म में इस पे रेमिटेंसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी मिस सीमा कामिल, इफ यू कैन एड्रेस दिस। जी, सो इसमें देखें जी, जैसे इरफान साहब ने कहा, दिस इज अ लाइफस्टाइल, सो दिस इज नॉट ए मनी रेजिंग एक्टिविटी। आपको पता है कि हमारी रिमिटेंसेस जो हैं वो तो 22-23 बिलियन डॉलर्स हैं। दिस प्रोडक्ट इज for they're not really to replace that, it is a savings product. अब पाकिस्तान के बाहर, as you all know, there are about 9 million Pakistanis overseas, or people of Pakistan origin overseas. Plus ये उनके लिए भी available है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं but बाहर उनके declared assets हैं. So really we would not like to predict. It is up to us and to you कि कितना लोग हमें अट्रैक्टिव इसको बनाते हैं और वो पैसे लेके आते हैं. But we are not going to make, because the whole idea is not to reach a target or to have a goal. But I can say this much, that $72 million is just the beginning, because we will look at it in different avenues, और भी इसमें changes or products आएंगे. So the idea really is to facilitate non-resident Pakistanis and to allow them to invest in their own country. So ये है, so I would not like to hazard कि हमारे इतने आएंगे या इतने, but it's going to be a lot more than this, and it should become a very important part of our inflows. Great, thank you. Shahzad, if you allow me, Shahzad sir, I'll just like to add to what Seema just said. I think they very, very aptly said, so हम चाह क्या रहे हैं? हम amount से ज़्यादा पाकिस्तानी की पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन चाह रहे हैं.
सो जैसे उन्होंने कहा हम 9 मिलियन की बात करनी है पाकिस्तानी की, पैसों की बात नहीं करनी, पैसे तो वो भेज ही रहे हैं, यू नो 23 बिलियन डॉलर आए, 4 महीने में हम 9 बिलियन डॉलर ऑलरेडी एक्सीड कर सकें, तो 73 मिलियन डॉलर जो रियली कुछ भी नहीं है। 73 मिलियन डॉलर 23 बिलियन डॉलर के आगे इट रियली डजंट मेक कोई कंपैरिजन नहीं। 2 months into the product, so maybe तो इसीलिए हमने कहा लाइफस्टाइल, इसीलिए हमने कहा बैंक्स विल रन दिस प्रोडक्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि अब हमने एक प्रोडक्ट लिया है और ये अगले महीने जनाब विल टॉक अबाउट अनदर, नो, this product will be and is being embedded in the system, so that's the primary target. So it's about 9 million Pakistanis, it's not about the amount. Amazing answer, Irfan Saab. Lifestyle and connecting with NRPs. That's amazing. मुझे लग नहीं रहा वैसे कि मैं बैंक का सेमिनार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम कोई नेटवर्क में बैठे हैं, फोरम पे बैठे हैं और कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग पीपल और लाइफस्टाइल की बात हो रही है। अच्छा, इसी हवाले से मैं इनपुट जानना चाहूंगा कमर अब्बास साहब का। अच्छा, हमारे पास तो हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के देखते हैं, ठीक है, मैं पहले था बाहर लेकिन अभी तो मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। कमर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको फॉरेन में बैठ के, या आपकी जो अपनी सोसाइटी है, लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इससे वाकई लाइफस्टाइल चेंज आएगा और हम जो 9 बिलियन लोग हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जो इरफान साहब ने फरमाया कि ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए भी है डेफिनेटली, लेकिन इसमें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं, और ये उन 9 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा रोशन डिजिटल अकाउंट, बजाय इसके कि ये इनवर्ड रेमिटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये हमारी हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत इनकलाबी इकदाम है, जिससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हवाले से पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। शहजाद आपका माइक म्यूट है। शहजाद आपका माइक म्यूट है। जी, मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, कैन यू सी दैट? इरफान साहब, आपके लिए क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के हवाले से। अगर कोई फॉरेन में बैठ के ये आरडी अकाउंट खोलता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो कैन ही इन्वेस्ट और इससे जो रिटर्न है वो रिपेट्रिएट हो सकते हैं? इरफान सिद्दीकी साहब जी, इसमें वी आर वर्किंग विद द स्टेट बैंक। अभी एज ऑफ राइट नाउ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन चूंकि वी आर एबल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो वी आर होपिंग दैट ये चीज हम शुरू कर पाएंगे विद द कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बट राइट एज वी स्पीक राइट नाउ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, बट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल दैट वेरी सून इट विल बी अवेलेबल। And if I can just add, जब वो facility when we work on it, obviously उसकी returns repatriable होंगी. Repatriable is the underlying principle of this account. So जो कुछ उसमें आएगा वो जाएगा भी, whenever it is required by the investor. जी, अच्छा, perhaps जी I might add something. मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ। 9 मिलियन पाकिस्तानी जो बाहर हैं, 90 लाख, उनमें से आई वुड से कि 70-80% जो है वो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर से लेके मैनेजरियल लेवल तक। तो ये वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं छोटे अमाउंट ट्रांसफ़र करने में और इस तरह के दूसरे इश्यूज जो उनको आते हैं। तो आई थिंक RDA इज़ अ रियली गुड थिंग कि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम, बट रादर मोर अबाउट ट्रांसफरिंग स्मॉलर अमाउंट and moving the money and paying the bills and everything. So I think that's more relevant to them as well. उनके लिए ज़्यादा ये कारआमद होगा, बजाय ये कि हम बात करते हैं कि टॉप 5% या टॉप 10% लोगों की जिनके लिए कोई इशू नहीं है मनी ट्रांसफर एंड अदर थिंग्स। थैंक यू डॉक्टर रिजवान। अच्छा, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं और बहुत से और भी जो फिनटेक पे भी वेबिनार था, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। लोग बड़ा कंसर्न है, पेपाल है, जैसे गूगल पे है, एप्पल पे है, सो लोग फोर्सी कर रहे हैं पाकिस्तान में इनका फ्यूचर, या तो पाकिस्तान अपनी कोई प्रोडक्ट लाए या फिर इनके साथ कोई कोलैबोरेशन हो। ना तो क्वेश्चन यह है, शुड पाकिस्तान वुड बी लुकिंग इनटू ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल एप्पल पे, गूगल पे, पेपाल etc., as currently inward remittances are not acceptable into Roshan digital account.
सवाल से ये लग रहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में मैं अगर फॉरेनर हूँ तो मैं तो पैसे भेज सकता हूँ, ठीक है, और अगर उसी अकाउंट में मैं किसी और से पैसे लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रिजवान से कहूँ कि आप मुझे गूगल पे के थ्रू इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ये मैं चाहूंगा सैयद इरफान अली अगर इसको इसके ऊपर कुछ डाल दें। चलिए, थैंक यू शहजाद। आई थिंक मैं इस सवाल का जवाब देर से देना चाह रहा था। मैं सोचा था कि अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा तो वेरी क्विकली। अच्छा देखें, ये जो अभी सीमा ने आपको बताया कि जो क्रिटिकल बात है रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये एक रीपैट्रेबल प्रोडक्ट है। तो आप जो भी पैसे लाएंगे व्हाटएवर यू ब्रिंग इन, आप ले जा सकते हैं, आप उसका प्रॉफिट भी ले जा सकते हैं, आप वेट भी कर सकते हैं, यू डू व्हाटएवर, आपके पैसे आप ले जा सकते हैं। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ फाइन लाइन, इट्स अ बिग लाइन, दैट इज ऑफ रेमिटेंसेस, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के तहत जो पैसा आता है। बट रिमेंबर, जो रेमिटेंसेस आती हैं वो रीपैट्रेबल नहीं होती, वो मेन फर्क है। और ना सिर्फ वो रीपैट्रेबल नहीं होती बल्कि हुकूमत पाकिस्तान उसको सब्सिडाइज भी करती है। तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं उनके पैसे पाकिस्तान भेजने के वो हम पे करते हैं, और वो अमाउंट बहुत बड़ी है। अगर आप इजाजत दें तो वी पे अबाउट 15 बिलियन रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट $100 मिलियन सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान उसको सब्सिडाइज करने में। जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो आप पाकिस्तान में पैसे तो ला रहे हैं, बट विद अंडरस्टैंडिंग कि मैं जब चाहूंगा ये पैसे वापस ले जाऊं। So that is why this amount is not being subsidized. अगर आपको पाकिस्तान में पैसे वापस ले जाने के लिए भेजने तो रोशन, और फॉर इंडिविजुअल्स ने भेजने तो रोशन डिजिटल अकाउंट इज द आइडियल जिसको आपको यूज करना है। और अगर आपको रेमिटेंसेस भेजनी है और उसको रिपैट्रिएट नहीं करवाना है, फिर कन्वेंशनल जो मनी चेंजर से पैसे आते हैं पेमेंट के, और जो दूसरे तरीके हैं जिसमें वेस्टर्न यूनियन है और दूसरे लोग हैं जो पैसे भेजते हैं, तो वो रिपैट्रेबल नहीं होते। तो ये मेन फर्क है। जबरदस्त, ये रिपेट्रिएशन वाली बात आपने बड़ी अच्छी बताई। इसका मतलब मैं एज अ लेमैन इसको ये सोच रहा हूँ कि मैंने एक रोशन डिजिटल अकाउंट में खोला, मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ और मुझे पता है पहले मुझे पाकिस्तान आना है, देन मैं हो सकता है यूएस चला जाऊँ। तो एक अकाउंट जो मैंने रोशन डिजिटल खोल दिया एक दफा लाइफ में, वो मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मैं उसको कहीं पे भी यूज करना चाहूँ, मैं कहीं से भी उसमें पैसे डालूं और कहीं पे भी निकलवाऊं, तो यही कॉन्सेप्ट होगा इसका। मैं सही समझ रहा हूँ उसको? ये बिल्कुल ऐसे ही है जहां जी भी इरफान साहब, जबरदस्त। तो इस लाइक क्लाउड पे जैसे हम डेटा डालते हैं उसी तरह से क्लाउड पे हमने एक अकाउंट खोल लिया, मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक ये बताइएगा, अभी तो हम आरडीए की बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, उस पे तो आपने इन्फ्लुएंस प्रेडिक्ट किए होंगे ना, ठीक है। आरडीए जो है इस अबाउट लाइफ स्टाइल, तो इस्लामिक नया पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट लाए हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे कुछ प्रेडिक्ट कर रही होगी, और रेट इज ऑल्सो वेरी हाई, आई थिंक 5.5% स्टार्टिंग रेट है। और मुझे पता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो रेट मिलता है हमारे यूएस डॉलर के अकाउंट्स पे, वो बहुत ही नॉमिनल होता है, लेस देन 1% होता है। तो अगर गवर्नमेंट 5.5% ऑफर कर रही है यूएसडी में, सो क्या प्रेडिक्शंस हैं इनफ्लोस के हवाले से? जी मिस सीमा, इफ यू कैन एड्रेस दिस। What is the prediction on the interest? ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसका रिटर्न on the inflows from जी on the inflows of in जी this जी Islamic नया पाकिस्तान so से, यही मैंने कहा पहले कि ये भी क्वेश्चन था कि कितना आएगा। We are just giving an opportunity. We would not like to hazard a guess on this कि कितना आएगा, because वो उन पे डिपेंड करता है। We have given a very excellent opportunity. Now, banks, everyone markets it, and it reflects on the confidence they have in Pakistan and the love they have in Pakistan. So that's part of it. But जैसे मैंने और इरफान साहब ने अभी explain करने की कोशिश की, that's just one aspect. So I would not like to say, and I don't think it would be right of me to कि मैं उसके लिए कोई प्रेडिक्शन करूं कि कितना आ जाएगा नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, and I think in that sense it would not be correct. वो लाएं, it's their money, अगर उनको attractive लग रहा है, they should please put it in. It's just an offer. They have many other places जहां वो देख रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। ये हमारे ख्याल में
इंटरनेशनली एक बहुत अच्छा रेट है, and they should be encouraged. But this is, as we said, हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो बस सिर्फ पैसे लाएं और हमें somehow the other बस इसी के पीछे हैं. Let them bring it, let them use the account. This is now बहुत सारे ममालिक में जिनके ऑफशोर लोग काम कर रहे होते हैं, ये होती है. और ये I've been in banking now many years, और हमारी तो यही थी, हम हमेशा चाहते थे कि जो NRPs हैं उनके लिए कोई ऑफरिंग हो, एंड इट्स फाइनली हियर. अब उनके साथ हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे. व्हाई नॉट लेंडिंग प्रोडक्ट्स आल्सो? हम बहुत चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं. वो यहाँ कोशिश करें अपना घर खरीदें right through this account. Many things can happen, but I don't think it would be right of me to say कि इतना X million dollars आएंगे. That would be not be correct. थैंक यू. अच्छा रिजवान साहब, आप जी बिल्कुल आपका थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं. आई थिंक it's not the matter of amount, it's the matter of principle. I think that's the most important thing. कि ये पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा मिले, बल्कि लोगों को सहूलियत मिले, उसके लिए काम कर रही है. एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि अब लोगों को, ज़ाहिर बात है, हमारा जो कल्चर है उसमें होता है ये कि आपने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. मेरी शायद पाकिस्तान की 3 या 4 इंस्टीट्यूशन में मेरी प्रोफेशनल मेंबरशिप है, सारी की सारी एक्सपायर हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में होता नहीं, वो मुझे पेमेंट करनी होती है, तो वो सारे इशू हो जाते हैं, कार टैक्स और दूसरी चीज़ें. तो आई थिंक कि यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए कि जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको किस तरह आसानी मुहैया की जाए कि वो कॉन्फिडेंट फील करें, वो उनका एतमाद बहाल हो कि जी हुकूमत कुछ काम कर रही है ऐसा कि वो अपने पैसे वापस पाकिस्तान में भेज सकें. आई थिंक that is the objective, जितना मैं समझ सका हूँ इस प्रोडक्ट को. अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि इस प्रोडक्ट के आने से आपका एतमाद मजीद उसमें इजाफा होगा या सेम रहेगा? रिजवान साहब, आपसे ये कंटिन्यूशन में. आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. एतमाद की जहाँ तक बात है, अगर हम बात करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस की, तो जो अगर मैं रेगुलर रेमिटेंस भेज रहा हूँ पाकिस्तान, तो हो सकता है कि मैं इसमें कर दूँ वही उसी अमाउंट पे, और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इन द पास्ट हमारा कॉन्फिडेंस शटर हुआ है. मैं तो उस वक्त बाहर नहीं था, लेकिन वो एक आपको शायद याद होगा 98-99 में एक स्कीम आई थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो. उसके बाद जो उसमें उसके साथ हुआ कि डॉलर को कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान रुपये में, तो वो एक अलग था. लेकिन अगर यहाँ पे जो अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, डेफिनेटली मुझे उसमें उम्मीद है कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. और लोगों का जो है उसमें, अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं वियतनाम में भी कुछ पाकिस्तानियों को देखूँ जो पाकिस्तान वापस गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से गए हैं कि उनका इकॉनमी पे ट्रस्ट उनका काफ़ी बहाल हुआ है, और उनको सबको ये उम्मीद है कि जी, और उनका ये, उन्होंने पाकिस्तान जाके वापस काम भी करना शुरू किया है. मैं शायद नाम लूँ तो कंवर साहब जो है उनको पहचान भी जाएं, लेकिन बहरहाल वो कई लोग हैं जो पाकिस्तान वापस गए हैं और वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. तो आई थिंक ये लोगों का, पाकिस्तानियों का एतमाद है इस हुकूमत पे कि वो काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान वापस जाके. ग्रेट. एक थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है. रजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ये क्वेश्चन आया है, कैन आई रिसीव द प्रॉफिट एंड और प्रिंसिपल रीपेमेंट और disinvestment proceeds from PSX in my non-RDA account. Roshan Digital तो है दूसरे वाले अकाउंट में, and this is especially important for cases of permanent return to Pakistan. रिजवान साहब बात कर ही रहे थे वियतनाम से लोग परमानेंट वापस आए, उसी से हवाले से क्वेश्चन है. रजा साहब, इसको अगर आप एड्रेस कर दें. अच्छा, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दी थी कि चाहे वो PSX में इन्वेस्टमेंट्स की बात हो या नया इस्लामिक नया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हो, जो प्री रिक्विजिट है वो मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट है. तो और जो रिपेट्रिएशन है वो भी इसी अकाउंट से ही अलाउ होगी, विच मीन्स के आपके पास और कोई अगर अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज अलाउड, लेकिन रिपेट्रिएट नहीं हो सकेगा. लिहाजा अगर आपको वापस ले जाना है तो फिर आपको उसी अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन. ग्रेट. इरफान साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, बीइंग मीज़ान बैंक, क्योंकि 8 बैंकों में से एक बैंक मीज़ान बैंक है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इसमें जो सर्विस होगा वो डिफरेंशिएट करेगा. मैं एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की तरह सोच रहा हूँ कि मैं क्यों मीज़ान में आऊँगा. एक तो पॉइंट क्लियर है कि इस्लामिक मुझे 100% शरिया कंप्लायंट जाना है. देन हाउ अबाउट सर्विस? ऐसे क्या सर्विस स्टैंडर्ड्स होंगे, ऐसी क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि अकाउंट भी नया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी,
फॉरेन में ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लोकली ट्रेनिंग की जरूरत होगी, इस पे एक अगर आप ओवरऑल एक व्यू देते हैं अपना। जी श्योर। देखिए सर्विस का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो चाहे रोशन डिजिटल अकाउंट हो या हमारा लोकल करेंसी अकाउंट हो या हम कार लीजिंग कर रहे हो या एक लैपटॉप की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विस तो हर जगह जरूरी है। आई थिंक एवर सिंस वी वर सेट अप एज अ कमर्शियल बैंक इन 2002, हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस था कि हमें शरिया की वजह से हो सकता है कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन किसी भी शरिया कंप्लाइंट बैंक में आए, or there may be 10% people who will not come to you because of Sharia compliance. वो कहेंगे यार nothing to do with Sharia, you know, business. But in between 75-80% of the population will come to you if your service is good, if your offering is good, and Sharia compliant becomes an icing on the cake. तो वो आपका एक incremental advantage आ जाता है उसमें. But if you only want to sell a product कि भाई हम Sharia compliant या आप हमारे पास आ जाएं, तो like you said हो सकता है 10% customers आ जाएं, बाकी 90% ना आए आपके पास. तो we are very cognizant of that, and all banks, whether conventional banks operating Sharia windows or dedicated Islamic banks, they are all cognizant कि हमें service provide करनी है. तो इंशाल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट में आई एम श्योर दैट जहां भी लोग जाएंगे वन ऑफ दोस 8 बैंक्स दे विल बी एबल टू होपफुली गेट अ गुड सर्विस, बिकॉज स्टेट बैंक इज आल्सो वेरी कीन कि ये अकाउंट में सर्विस लेवल अच्छे रहे, वैसे भी हम कीन रहते हैं. तो होपफुली यू शुड बी एबल टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस इन ऑल द 8 बैंक्स इंशाल्लाह. अच्छा, इसी का दूसरा एस्पेक्ट सर्विस एंड देन मार्केटिंग. तो मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं ये जानना चाहूँ, कमर साहब अगर आप ऑनलाइन हैं, कि कितनी मार्केटिंग आपको लगता है कि की गई है, आप कितने अवेयर हैं? फॉर एग्जांपल एक एम्बेसी से क्या बैंक्स कांटेक्ट करते हैं, स्टेट बैंक का मुख्तलिफ एम्बेसीज जो दुनिया भर में है, आप चूँकि 2 एम्बेसीज को के एम्बेसडर हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि एम्बेसीज और बैंक्स इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और पास में क्या था, अभी आप क्या देख रहे हैं? जी, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सारी एम्बेसीज को अप्रोच किया था, और जब ये इनिशिएटिव लिया गया है तो उसके बाद हमने ये इंफॉर्मेशन जो है अपने अपने मुल्क में हर एम्बेसी ने सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे मुकीम हैं उनके साथ शेयर की है. और काफ़ी सारी हमारी एम्बेसीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पे वेबिनार्स किए हैं, जिससे उस मुल्क में रहने वाले लोगों को उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से इन्फॉर्म किया है. और आई थिंक तकरीबन तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं वो ऑलरेडी इस अकाउंट के बारे में वाकफियत रखते हैं. उनमें से जो लोगों ने अकाउंट नहीं खोले तो मे बी कि उनको अभी फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही. और एक और इश्यू जो है वो शायद ये है कि जो बैरून मुल्क रहते हैं उनको अपने पैसे उस मुल्क से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का इश्यू भी समटाइम्स फेस करना पड़ता है. जैसे वियतनाम में मौजूद पाकिस्तानियों को इस तरह का इश्यू फेस करना पड़ता है. वहाँ के बैंक्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं इस हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच चुकी है. और शहजाद साहब, इसमें अगर आप इजाज़त दें, आई एम जुल्फ़िकार खोकर, हेड पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव्स स्टेट बैंक. We have been having awareness sessions throughout the world with the collaboration of our Pakistani embassies and consulates. We have had we had one session today at 12 o'clock with Australia. We have had the sessions with in USA, UK, Saudi Arabia, different GCC countries, South Africa. And now we have a session within a week with the Far East countries, including major countries like Indonesia, Singapore, Thailand, and so on. So the State Bank and Pakistan Remittances Initiative is creating this awareness throughout the world. And these sessions are not only through the embassies, but we also are having other sessions with the professional bodies. For example, we had a session with the North American Doctors Association as well, and so on. So this awareness thing is going on all fronts. Excellent. इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं. अभी 5 मिनट पहले तक ये फेसबुक पे 20,000 पार्टिसिपेंट्स वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं, और इस पे जूम पे इस वक्त 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं माशाल्लाह. एंड क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 420 क्वेश्चंस, मोर देन दैट, वो आ चुके हैं.
इसमें से बहुत सारे हमारी टीम्स हैं जो उसको लाइव भी आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल आंसर्स हैं वो वहीं लाइव दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बाद में भी मीज़ान बैंक की टीम आपको रिवर्ट कर रही हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अभी हमने देखा है रिसेंट एक यूएस डॉलर पीकेआर जो मूवमेंट है वो बड़ी फेवरेबल रही है, तो पीकेआर अप्रिशिएट कर रहा है एज कंपेयर टू डॉलर। ऐसे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं मजीद डॉलर का इन्फ्लक्स इन, क्योंकि इसका आपके पास दोनों है कि पीकेआर में भी अकाउंट खोल सकते हैं और डॉलर में भी अकाउंट खोल सकते हैं। इस पे अगर इरफान साहब थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें, और मैं सीमा का भी इसमें थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा। शहजाद, डॉलर मूवमेंट पे कमेंट्स इनवाइट ना किए जाएं पब्लिकली, दैट वुड बी बेटर। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी व्हेन आई एड्रेस्ड शहजाद साहब, मैंने कहा था कि इट्स अ मार्केट डिटरमिन्ड रेट। जी ठीक है, बिल्कुल सही। We don't determine it, so it's market determined and it's flow based, and as long as it's not disorderly, it's a market determined rate. ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लोग आ रहे हैं, मैंने मतलब पिक किया कि मुझे अच्छा लगा वो क्वेश्चन। उनका ये सवाल है कि अभी जो लॉज हैं वो कानून ही चेंज हो जाता है। आई थिंक इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। तो अभी तो रिपेट्रिएशन है, बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, लॉ चेंज हो जाता है, तो ये एक कंसर्न लग रहा है, कम लोगों का है बट है कंसर्न। whoever wants to take it, क्योंकि लॉ से रिलेटेड है, तो जी। अब आई थिंक एक बात तो जी आप कर लें इरफान साहब। जी थैंक यू सो मच। अच्छा शहजाद, एक तो पहली बात ये है कि जो ये अकाउंट्स हैं ये प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। देयर इज अ लॉ कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स 2001, वो प्रोटेक्ट करता है कि ये अकाउंट्स प्रोटेक्टेड हैं, इनमें पैसे ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, सो दैट्स। बट ये कहना कि लॉ चेंज हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रेसिडेंस नहीं है। और पाकिस्तानी जब भी पैसे लाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं वो उसी तरह ही वापस जा रही है। आई थिंक आप हमारी इस वक्त मूडीज की रेटिंग देख लें, वो पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। इस वक्त आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट देख लें, वो बढ़ती जा रही है। इस महीने ही $330 मिलियन आए, अभी इस पिछले महीने की खबर है। और आई थिंक जो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो स्टेबल है 7% पे। So I think that there is a lot to be positive about it. But फिर then we have not let any bank fail. कोई depositor आज तक ऐसा नहीं हुआ जो ये claim कर सके किसी भी जगह पर कि मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा अकाउंट बैठ, मुझे पैसे दिए नहीं गए, ऐसा भी नहीं हुआ। So I think Pakistan has a lot to write about. तो yes, एक इंसिडेंट हुआ था 98 में, पर सब लोगों को भी पैसे मिल गए थे। ऐसा नहीं था कि उनके पैसे कहीं चले गए थे, उनको पैसे मिल गए थे। Yes, that's a bad incident, but other than that, it has nothing of this sort can happen. I don't foresee it in the future. और इसमें आप एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि पाकिस्तान is very, our non-resident Pakistanis are very important for Pakistan. और अगर if it's any government, कोई गवर्नमेंट ये नहीं है जो who does not like the non-resident Pakistanis. So why would they make a change of law which will, you never make a change of law, let's be practical. ऐसा change of law नहीं होता to harm your own interest and to harm the interest of the people that are supporting you so much. So why would they make such a law? Why would such a change of law come? Especially अब आप देख रहे हैं that it's a much more liberalized economy. So yes, वो एक जैसे इरफान साहब ने कहा था, एक दफा हो गया था, उसकी जाहिर है कुछ मेमोरी है, मगर we have to move on and have faith that laws are now made and followed. And why should any change of law come for such an important community? In fact, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये वाला अकाउंट पहले क्यों नहीं आया? That's a better question. बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। मैं उसी पे, सॉरी शहजाद साहब, मैं उसी पे आ रहा था कि ये अब तक जो है ये अकाउंट पहले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हुआ? मैं तो बहुत साल से बोल रही हूँ कि ये अकाउंट आए, अब शुक्र करें आगे बढ़े इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। आई हैव 100% फेथ इन दैट। वो मैंने जो मेरा कमेंट था वो इज मोर अबाउट अ लिटिल बिट ऑन द कॉशियस साइड, लेकिन एक चीज ये है
हमने लास्ट वीक एक वेबिनार किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ पे भी हमें बड़ा पॉजिटिव ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स का उस पे व्यूज रहे थे। अभी मैं नंबर्स देख रहा था जो इनफैक्ट 2-3 दिन पहले रिलीज हुए हैं, दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। आपने जो बात की है मार्केट डिटरमिन्ड रेट, दैट्स डेफिनेटली वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ इस वक्त हो रही है, तो आई डोंट सी के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यूएसडी पीकेआर पैरिटी में रहेगा। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है इसमें फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर, और वो आ भी रहे हैं। मेनली दे आर कमिंग इन द नॉन ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक क्लीन टेक, सोलर एनर्जी में और दूसरे सेक्टर्स में जहां पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और जो ज़रूरत है हमारे मुल्क की। सो आई सी दैट देयर इज ओनली वे फॉरवर्ड। मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हमें कोई इस चीज़ का खतरा हो कि जी हम वापस रिग्रेस कर जाएंगे। थैंक यू मिस सीमा, थैंक यू डॉक्टर रिजवान। अमेजिंग रिस्पांस। क्वेश्चंस तो आ रहे हैं मजीद 450 क्वेश्चंस और 25,000 लोगों की पार्टिसिपेशन है माशाल्लाह ऑन सोशल मीडिया। बट हमें कभी ना कभी तो क्लोज करना है, तो मे बी वी कैन सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियंस से मेरा कहना है इन नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑलमोस्ट 90% जो क्रक्स है वो तो कवर हो गया है। मजीद जो क्वेश्चंस है वो हम आपको अलग से जवाब देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमर अब्बास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर रिजवान साहब। थैंक यू जुल्फिकार खोखर साहब। थैंक यू सैयद इरफान अली, इरफान सिद्दीकी साहब। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक यू मिस सीमा कामिल। आपने बड़ा जबरदस्त एड्रेस किया। और ये जो बात आपने कही स्टेट बैंक की जो रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। ये आपने दिल जीत लिया। ये डेफिनेटली अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो आपके एनआरपीस हैं, देन तो इससे बड़ा कोई स्टेप बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे इन ये रिसेंट पास्ट में कोई नजर नहीं आता। सो दोज आर माय कमेंट्स। एनी व्यूज अगर आप कुछ कहना चाहें, एनी लास्ट मिनट कमेंट, ऑल ऑफ यू। Just that, thank you very much for this opportunity. Thank you. आपने बहुत हमारी you've been very kind. आपने बहुत अच्छी बातें भी की हैं. I would just like to thank all the participants on behalf of the State Bank, Irfan Ali Saab and our team for giving us this opportunity. And अगर इतने सवाल हैं, so I hope कि अगर you do answer them, अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है, so please turn to us for this. And as you said, it's about connectivity. And I think इसमें हमारी खामी रही है. अब हमने ये connectivity खत्म कर ली है, तो अब आप सब सामने आए and we will try to do the best we can. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone. So we'll end with a दुआ कि अल्लाह ताला बेहतर रखें पाकिस्तान के लिए भी, आप सबके लिए। So और ये कोविड से भी हमें खात्मा हो इसका इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। Thank you. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।